Okay, so we have already analyzed, or we have already draw the shear force bending moment diagram of a simply supported beam subjected to point load, uniformly distributed load, uniformly varying load, and with a concentrated moment. Now today we will learn how to draw a shear force bending moment diagram for a simply supported beam with uniformly distributed moment. Okay, so what is that uniformly distributed moment? Uniformly distributed moment means like uniformly distributed load. Uniformly distributed load के केस में क्या हो रहा था कि over a certain span the load is uniformly distributed. That means the intensity of loading throughout the length is constant, but that is uniformly distributed over that span. Like the load, there is, if there is a moment which is distributed over a certain length, then we call the moment as uniformly distributed moment. Like if we have a beam and we have a uniformly distributed moment or uniformly distributed anti-clockwise moment whose value is m kilonewton meter per meter, and if the length is l, then total moment will be m into l. Like if we have a uniformly distributed load whose intensity is w kilonewton per meter, and this is distributed over a length l, then the total value of load will be w into l. So like uniformly distributed load, moment also can be uniformly distributed over a span. So now we will learn how to draw the shear force and bending moment diagram for this type of problems where the uniformly distributed moment is coming. So let's consider a simply supported beam AB whose length is L and which is subjected to a uniformly distributed counterclockwise moment m kilonewton meter per meter. Okay, so स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, तो क्या था हम लोगों का स्टेप वन? कैलकुलेट द रिएक्शन और रिएक्शन कैलकुलेशन. So here we will have at point A we have a reaction RA and at point B we will have a reaction RB. So RA, first equation, summation of Fy is equals to 0. So RA plus RB should be equal to 0 because there is no load acting in the y direction and as well as in the x direction also. So this one is our equation number 1. Now we also have the equilibrium condition, summation of m a clockwise positive is equals to 0 because we are analyzing from left hand side to right hand side. Okay, और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एनालिस करेंगे तो साइन कन्वेंशन क्या था? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. ए पॉइंट पे अगर हम लोग मोमेंट लेंगे इस पॉइंट पे तो क्या मिलेगा? आरबी के कारण एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा, तो माइनस आरबी इंटू एल. और एक देखो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट जो कि थ्रू आउट द स्पैन एक्ट करता है, तो दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट. दैट्स व्हाई आई पुट नेगेटिव and the value of moment is m into l because that moment is uniformly distributed over the length and whose intensity is m kilonewton meter per meter. So total intensity of moment would be m into l, that equals to 0. So rb is equals to minus m. Now put the value of rb at equation number 1, you will have the value of ra. So ra का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? पॉजिटिव m. सो हमें आर ए और आर बी दो रिएक्शंस का वैल्यू मिल चुका है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द शेयर फोर्सेस. सो स्टेप टू, शेयर फोर्स कैलकुलेशन. ओके, नाउ
say we will consider a section on AB. So let's say section consider करो AB में at a distance x from A and on this x span the counterclockwise uniformly distributed moment m kilonewton meter per meter is acting. Okay. So say shear force at that section कितना होगा? Only because of the reaction force RA. So, पॉजिटिव RA. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से अगर एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए जो साइन कन्वेंशन हम लोग लिए थे upward forces should be positive. So the value should be positive m. Now in between A and B there is no any other load acting, no loads acting in between A and B. So the shear force value will be constant and the value should be that positive m. So shear force in between A and B should be constant and whose value should be positive m. So now we can easily draw the shear force diagram. So let's draw the shear force diagram. This is our baseline. Here we have a reaction whose value is positive m, and in between A and B there is no load, that means shear force is constant. And again at point B there is a reaction whose value is minus m, so that will look like this. So positive m negative m 0 hoga and that will make it a closed diagram. Positive, that is the shear force diagram for a simply supported beam subjected to uniformly distributed moment. Now let's draw the bending moment diagram. Okay, so bending moment diagram draw करने से पहले हम लोग देखते हैं कि bending moment calculation एक बार देख लेते हैं. So step 3, bending moment calculation. Okay, now again consider a section at a distance x from A and इस x distance पे uniformly distributed moment m kilonewton meter per meter act हो रहा है. Okay, so इस x section पे bending moment का वैल्यू कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू एक RA के लिए रिएक्शन होगा, जो RA रिएक्शन है उसके कारण एक मोमेंट जनरेट होगा. और देखो RA अबाउट x इस बीम को कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज. सो ऑब्वियसली इट विल बी ए पॉजिटिव मोमेंट. सो पॉजिटिव RA इनटू x. ओके, नाउ इस x डिस्टेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू जिसका इंटेंसिटी है m किलोन्यूटन मीटर पर मीटर और ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो ऑब्वियसली माइनस m किलोन्यूटन मीटर पर मीटर और ये एक्ट कर रहा है x डिस्टेंस पे. सो टोटल वैल्यू ऑफ मोमेंट विल बी m into x. So that is equation A. Now if you solve this equation, RA का वैल्यू कितना था? पॉजिटिव m into x minus m into x. So that will cancel out and the final bending moment will be 0. So क्या हो रहा है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट हमें मिल रहा है किसी भी सेक्शन पे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. कहीं पे भी x का वैल्यू बिठाओ 0 ही मिलेगा. सो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा दैट इज द बेस लाइन से A B and you will have a bending moment, zero bending moment curve, zero bending moment diagram. So that value is 0. That is your bending moment diagram for a simply supported beam with a uniformly distributed moment. Okay, so we have learned how to draw the shear force and bending moment diagram.
for a simply supported beam with a uniformly distributed moment. Okay, now let's solve another problem. It's a quite interesting problem. Problem क्या बोल रहा है कि a simply supported beam support column load P at center of span as shown. If the width of the column is L by 10, draw shear force and bending moment diagram. So क्या बोल रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जिसका सेंटर पे एक कॉलम लोड एक्ट कर रहा है, मतलब एक कॉलम है जिसका विथ L by 10 है, उसके ऊपर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सेंटर पे। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, जब एक बीम के ऊपर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे और उसके ऊपर तुम्हारा लोड आ रहा है, देन दैट मीन्स कि जो पी लोड है, दैट लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस लेंथ। से यहाँ पे लेंथ कितना है, L by 10। सो इस पूरा अरेंजमेंट को हम लोग एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के टर्म में लिख सकता है, जिसका इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू P बाई L by 10, क्योंकि टोटल लोड P है और कितना लेंथ के ऊपर वो एक्ट कर रहा है, L by 10 लेंथ के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग in that L by 10 distance, that value will be 10P by L kilonewton if the value of P is in kilonewton per meter, or if it is in Newton then Newton per meter. So हम लोग इस अरेंजमेंट को एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ तो फिर हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? अभी हम लोग आसानी से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि दैट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड सब्जेक्टेड टू ए UDL एट ए सर्टेन लेंथ एंड सर्टेन डिस्टेंस। ओके, सो पहले लेंथ जो है उसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेंटर तक जो लेंथ था, डिस्टेंस था, सेंटर तक जो डिस्टेंस था, दैट इज L by 2 एंड दिस इज L by 10। सो फ्रॉम A to D, मतलब जहां पे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड चालू होता है वहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L by 2 माइनस हाफ ऑफ L by 10, क्योंकि हमें यहां तक डिस्टेंस चाहिए। So L by 2 minus L by 20, that is 9L by 20. So from A to D, distance is 9L by 20. From D to E, the distance is L by 10. And again from E to B, 9L by 20. So now step by step इसे भी solve करो. So step 1, reaction calculation. Okay. So reactions कहाँ पे होगा? A point पे एक reaction मिलेगा, B point पे एक reaction मिलेगा. So from static equations, these beams are all are determinate beams. That means we can analyze them using the static equation. So first static equation यहाँ पे क्या use करेंगे? Summation of Fy is equals to 0. So summation of Fy is equals to 0 करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? Ra from downward to upward act कर रहा है, plus Rb that is also acting from downward to upward, minus यहाँ पे कितना लोड एक्ट कर रहा है, 10P by L, कितना डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, L by 10 पे, is equals to 0. So that equation will give you Ra plus Rb is equals to P. L cancel out, 10 cancel out. So that is equation number 1. Now अभी यहाँ पे दो unknowns है, so we need another equation. So another equation क्या होगा, moment का equation. So summation of moment at A clockwise positive is equals to 0. Now A point पे देखो मोमेंट क्या होगा, ए पॉइंट पे अगर मोमेंट लेंगे आरबी के कारण एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण एक क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। सो माइनस आरबी इंटू एल प्लस, अभी देखो इस लोड का जो इंटेंसिटी है, दैट इंटेंसिटी शुड बी पी, और पी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, L by 2 पे। सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज नॉर्मली करो 10P by L into L by 10, that is the value of लोड, और ये जो लोड एक्ट करेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, मतलब उसके सीजी पे एक्ट करेगा, और इसका सीजी कहाँ पे होगा, ए पॉइंट से L by 2 डिस्टेंस पे। सो L by 2
is equals to 0. So AL cancel out, 10 cancel out. Obviously you will get P into L by 2 because the intensity of loading, total intensity of loading should be P, and P is acting at the center. So you can directly write P into L by 2. So यहाँ से हम लोगों को RB का वैल्यू मिलेगा. So RB का वैल्यू कितना मिल रहा है? RB is equals to P by 2. ओके, सिमिलरली एक नंबर इक्वेशन में बिठाओ, RA का वैल्यू भी मिल जाएगा. सो RA का भी वैल्यू होगा P by 2. ओके, सो RA और RB का वैल्यू मिल चुका है. ना हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है, फिर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करना है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. जहाँ पे हम लोग जो फ्री बॉडी डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है उसको ड्रॉ कर लिया. यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे. सो स्टेप 2, शेयर फोर्स कैलकुलेशन. ओके, सो हम लोग स्पैन वाइज देख सकते हैं. एडी पे कितना शेयर फोर्स हो रहा है, डीई पे कितना हो रहा है, और ईबी पे कितना हो रहा है. सो से शेयर फोर्स, or you can take the sections whatever you want or which method you want to follow, you can follow. सेक्शन लेके करने से अगर कंफर्टेबल हो तो सेक्शन लो. इफ डायरेक्टली विदाउट कंसिडरिंग द सेक्शन की पॉइंट्स पे अगर तुम्हें निकालना है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो. सो हम लोग स्मार्टली करेंगे, जहाँ पे सेक्शन लेने का जरूरत होगा सेक्शन लेंगे, जहाँ पे जरूरत नहीं होगा डायरेक्टली कर देंगे. सो शेयर फोर्स ऑन एडी, एडी सेक्शन पे देख रहे हैं, एडी पे. सो एडी सेक्शन पे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे एडी के ऊपर एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे, सो क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में हम लोगों का RA फोर्स एक्ट हो रहा है. तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि शेयर फोर्स इन AD इज इक्वल्स टू पॉजिटिव RA. पॉजिटिव क्यों? क्योंकि दैट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड वी आर एनालाइजिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो द वैल्यू इज P by 2. सो AD स्पैन पे हम लोगों का जो शेयर फोर्स का वैल्यू होगा वो P by 2 होगा. सो लेट्स ड्रॉ करते जाओ इसके साथ साथ. सो A पॉइंट पे P by 2 है, A पॉइंट पे P by 2 है, and in between A and D that P by 2 is constant. So हमें D पॉइंट तक शेयर फोर्स का वैल्यू मिल चुका है जिसका वैल्यू है P by 2. Now on DE शेयर फोर्स को निकालना है. ओके, सो शेयर फोर्स ऑन DE. ओके, सो D पे हमें एक सेक्शन लेना होगा. अगर सेक्शन मेथड से करेंगे तो चलो एक सेक्शन लेते हैं D पे. ए पॉइंट है, यहाँ पे RA एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है तुम्हारा W इंटेंसिटी का एक लोड जिसका वैल्यू है 10P/L पर मीटर. ओके, नाउ ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना डिस्टेंस था ये? 9/20L, 9L/20. सो यहाँ पे हम लोग A पॉइंट से सेक्शन नहीं लेंगे, चलो सेक्शन को लेते हैं D पॉइंट से. D पॉइंट से, और यू कैन टेक द सेक्शंस फ्रॉम A व्हाटएवर यू वांट, बट यहाँ पे 9L/20 इतना सा लेंथ को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है. सो हम लोग D पॉइंट से एक सेक्शन ले लेते हैं X. सो लेट कंसीडर a section on DE at a distance X from D. ओके, नॉट फ्रॉम A, अभी D से कंसिडर किया है. सो ये जो X का लिमिट होगा वो कहाँ से होगा? 0 लेस देन इक्वल्स टू X लेस देन इक्वल्स टू नेक्स्ट लोड, मतलब ये लोड के बाद वाला. सो ये जो लोड है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ ऑफ L/10. सो L/10 तक जाएगा. 0 कहाँ पे होगा? D पॉइंट पे. L/10 कहाँ पे होगा? E पॉइंट पे. सो अभी बताओ कि शेयर फोर्स एट X का वैल्यू कितना होगा? शेयर फोर्स एट X, इस सेक्शन में शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा? एक होगा पॉजिटिव RA माइनस इस लोड, ये तो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, सो W इंटू X डिस्टेंस पे वो एक्ट कर रहा है. सो उस पॉइंट के लिए हमें मिल जाएगा W इंटू X
ओके और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, चलो वैल्यू सारा बिठा देते हैं। आर ए का वैल्यू है p/2 माइनस डब्ल्यू का वैल्यू है 10p/l इंटू एक्स, से इस इक्वेशन का नाम दे दो ए। सो अगर x इक्वल्स टू 0 बिठाएगा, x इक्वल्स टू 0 बिठाएगा मतलब पॉइंट डी पे मिलेगा p/2। ऑलरेडी हम लोगों ने p/2 कैलकुलेट किया है। अभी x इक्वल्स टू हमें निकालना होगा, एक बार l/10 पे देखेंगे, एक बार सेंटर पे देखेंगे। सेंटर कहाँ पे होगा, l/20 पे। चलो एक एक करके देखते हैं। सो एट x is equals to 0, that means shear force at d कितना हो जाएगा, p/2। ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, मतलब पिछला वाला जो कैलकुलेशन था वो सही था। नाउ एट x इक्वल्स टू से l/20 पे लेंगे। l/20 कहाँ पे होगा फिर x का वैल्यू, l/20 होगा c पॉइंट पे। ये टोटल l/10 है, c पॉइंट पे कितना होगा, l/10 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स l/20। सो l/20 दैट मीन्स शेयर फोर्स एट c। सो उसी क्वेश्चन में बिठाओ p/2 ओके माइनस 10p/l इंटू l/20। सो दैट विल गिव्स यू 0, दैट मीन्स सेंटर पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है। तो यहाँ पे राइट इट डाउन, शेयर फोर्स एट सेंटर इज इक्वल्स टू 0। नाउ एट x इक्वल्स टू l/10, दैट मीन्स l/10 मतलब देखो ये जो x हमने कंसिडर किया है सेक्शन d से कंसिडर किया, तो इस सेक्शन का लिमिट कहाँ से होगा, d टू e। तो d पे अगर 0 होगा सो d टू e लेंथ कितना है, l/10। सो l/10 के अंदर इस सेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो l/10 दैट मीन्स शेयर फोर्स एट e इज इक्वल्स टू p/2 माइनस 10p/l इंटू एक्स के जगह पे l/10। so that will gives you minus p/2 obviously। so d पॉइंट पे मिल रहा है p/2 और e पॉइंट पे मिल रहा है नेगेटिव p/2 और सेंटर पे 0 हो रहा है। फेयर एनफ। नाउ इन बिटवीन e एंड b देयर इज नो लोड एक्टिंग। सो यहां तक हम लोगों को मिल चुका था p/2, अभी यहाँ पे हमें मिला नेगेटिव p/2, ये जो ऑर्डिनेट होगा ये नेगेटिव p/2 और सेंटर पे 0 होगा। तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यूडीएल के लिए शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है वो इंक्लाइंड लाइन होता है। नाउ यहाँ पे नेगेटिव p/2 एंड इन बिटवीन ई एंड बी देयर इज नो लोड एक्टिंग, सो कांस्टेंट p/2 और यहाँ पे एक आरबी एक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू है पॉजिटिव p/2। सो ये इसको जाके क्लोज डायग्राम बना देगा। सो दैट ऑन इज द shear force diagram, पॉजिटिव नेगेटिव p/2। सो शेयर फोर्स डायग्राम तो ड्रॉ किया, सी पॉइंट पे 0 हो रहा है। सी पॉइंट को ख्याल रखना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे हम लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। चलो अभी बेंडिंग मोमेंट को निकाल लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे और उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो स्टेप 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ओके सो बेंडिंग मोमेंट अगर निकालेंगे, चलो यहाँ पे एक बार बीम को ड्रॉ कर लेते हैं तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक लोड आ रहा था W इंटेंसिटी का जिसका वैल्यू है 10p/l and this is acting over a length of l/10। A, D, center C, E and B, and this distance already we found out 9l/20 20। ओके सो पहले हम लोग एडी स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, फिर डीसी स्पैन पे देखेंगे, फिर सीवी स्पैन पे देखेंगे। सो पहले बेंडिंग मोमेंट ऑन एडी। सो एडी पे अगर देखना होगा तो एडी के इन बिटवीन एडी हमें एक सेक्शन कंसिडर करना होगा। चलो एक सेक्शन इन बिटवीन एडी कंसिडर कर लेते हैं, आर ए। नाउ ये जो सेक्शन हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम ए से ले रहे हैं एट ए डिस्टेंस एक्स। ओके
सो इन बिटवीन ए डी हम लोगों ने एक सेक्शन कंसिडर किया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए, द सेक्शन इज फ्रॉम ए। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होगा इस सेक्शन पे इज इक्वल्स टू, और ये जो सेक्शन हमने कंसिडर किया इसका लिमिट कहां से कहां होगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 9l/20। 0 कहां पे होगा, a पॉइंट पे, 9l/20 कहां पे होगा, d पॉइंट पे। सो यहाँ पे देखो बस RA के कारण ही मोमेंट आएगा और RA क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो पॉजिटिव RA इंटू एक्स। नाउ RA का वैल्यू कितना था, p/2 इंटू एक्स। सो 0 अगर बिठाएंगे एट x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट at A is equals to 0. Now at x is equals to 9l/20, that means bending moment at D should be equals to RA, और RA का वैल्यू था डायरेक्टली लिख देते हैं p/2 इंटू 9l/20, दैट गिव्स यू 9pl/20। सो ए पॉइंट पे 0 मिला, डी पॉइंट पे मिला 9pl/20। सो साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। सो ए पॉइंट पे 0 मिला और डी पॉइंट पे मिला हमें 9l/20, सॉरी कितना मिला था, 9pl/40, नॉट 20, दैट विल बी 40, 9pl/40, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, सो इस पॉइंट पे हमें मिल चुका है 9pl/40। और पॉइंट लोड के लिए ये जो डायग्राम होगा दैट विल बी इंक्लाइंड लाइन। ओके, नाउ हमें इस सी पॉइंट पे निकालना होगा कितना होगा, और ई पॉइंट पे निकाल के देखना होगा। सिमेट्रिक सेक्शन है तो डी पॉइंट पे जितना आया है ई पॉइंट पे भी उतना आएगा, फिर भी हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बेंडिंग मोमेंट ऑन डी सी। ओके, सो लिखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऑन डी सी, ऑन डी सी। ओके, सो डीसी में अगर लेंगे तो चलो पहले जैसा एक सेक्शन लेते हैं डीसी के अंदर। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉ कर दो RA। अगेन हम लोग सेक्शन को वही से लेंगे, चलो AD XX, और जो सेक्शन हम लोग लेंगे फ्रॉम D। ओके, तो D से करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट स्टिल हम लोग पहले ही D से लिए हैं तो अभी भी D से लेंगे। ओके, तुम लोग चाहते तो A से भी सेक्शन को ले सकते हो। सो ये है 9l/20। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन लिया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम D। सो ये जो x का लिमिट का वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू l/10, एंड 0 होगा d पे, l/10 होगा e पे। ओके, सो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट दैट सेक्शन x इक्वल्स टू, सो RA के कारण एक मोमेंट आएगा, और ये जो लोड यहाँ पे आ रहा है 10p/l इंटेंसिटी का लोड जो कि एक्स जो स्पैन है उसके ऊपर आ रहा है, तो उसके कारण एक मोमेंट होगा। सो RA के कारण कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। सो वी कैन राइट पॉजिटिव RA इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 9l/20 प्लस एक्स। सो ये गया RA के लिए। नेगेटिव ये जो यूडीएल आ रहा है 10p/l पर मीटर, वो नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो इसके लिए कितना हो जाएगा, W से 10p/l लिखो, 10p/l एक्ट कर रहा है x डिस्टेंस पे और x/2 सेंटर से उसका डिस्टेंस। सो ये हो गया 10p/l दैट इज इनटू x, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। और इसका अगर हमें इस पॉइंट से मोमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली CG तक डिस्टेंस चाहिए और CG उसका हाफ पे होता है। सो हमें एक इक्वेशन मिला, चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या मिलेगा, mxx इज इक्वल्स टू, और बेंडिंग मोमेंट एट xx इज इक्वल्स टू p/2, RA का वैल्यू था p/2,
9L/20 प्लस x माइनस 10p/l इंटू x² 2। तो इस इक्वेशन का नाम दे दो b। वही किया हम लोगों ने, देखो सिंप्लीफाई किया, आर की जगह पे p/2 बिठा दिया, बाकी सारा कुछ सेम है। 10p/l इंटू x²/2, 10p/l इंटू x²/2। ओके, ऑल राइट। सो अभी चेक करते हैं, चलो। एट x इज इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो कौन सा पॉइंट पे हमें मोमेंट मिलेगा? d पे, क्योंकि सेक्शन हम लोग d से लिए है। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट एट डी, दिस इज टू चेक कि हम लोगों ने जो इक्वेशन डेवलप किया है वो सही है कि नहीं है। सो ये जो x टर्म है पूरा 0 हो जाएगा। सो p/2 इंटू 9L/20 प्लस x तो 0 है तो इतना ही आएगा, 9pl/40। ऑब्वियसली देखो md का वैल्यू जब पिछला वाला सेक्शन से क्या था, कितना आया था? 9pl/40। दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, नाउ एट x इज इक्वल्स टू, कहाँ पे लेंगे? चलो सी पॉइंट पे ले लेते हैं। तो सी पॉइंट कौन सा होगा? L/10 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स L/20, दैट मीन्स BM एट C, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? p/2 ब्रैकेट में 9L/20 प्लस x की जगह पे L/20 माइनस 10p/l इंटू x²। सो L/20 है, दैट मीन्स L²/400 इंटू 2, डायरेक्टली कर दिया। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? 9pl/20 plus l/20, so that will give you l/10, so pl/20 for this zone, or p/2 into p/2 whatever it is, so that will give you p/4 p/2. And here if you do the calculation, so 9 plus 1 10/20 p/2 so pl/4 for this section, minus for this section l cancel out, 10 for 40, so that will give you pl/80. Now if you do the calculation here, so 80 20 minus, so 19 pl/80, so bending moment at C, and that will be the maximum bending moment. Okay, now at x equals to l/10, l/10 कहाँ पे है? l/10 है तुम्हारा E पॉइंट पे। so E पॉइंट पे भी मोमेंट निकाल के देख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट E। तो कैलकुलेट करो, p/2 9L/20 प्लस L/10 माइनस 10p/l इंटू L/10 है, सो L²/100 इंटू 2। तो इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल हैव 9pl/40। कैलकुलेट करके सॉल्व करना। और सिमेट्रिक सेक्शन है, ऑब्वियसली 9pl/40 हम लोगों को मिलना चाहिए। एस डी पॉइंट पे भी 9pl/40 मिला था, ई पॉइंट पे भी 9pl/40 मिला। इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना, या फिर चलो सॉल्व इसको करके दिखा देते हैं। सो इस जोन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 20 है 11, सो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कितना? 11pl/40, 11pl/40 माइनस 10 20, so L/pl/20 20, so obviously you will get 9pl/40। that means हम लोगों का D पॉइंट और E पॉइंट पे सेम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। सो देख लो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, पहले कौन सा पॉइंट था? A पॉइंट पे 0, D पॉइंट पे हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट मिला 9pl/40, C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मिला 19pl/80, अगेन E पॉइंट पे हम लोगों को मिला 9pl/40। ऑब्वियसली 9pl/40 मिलना चाहिए था, क्योंकि ए सिमेट्रिक सेक्शन है। चलो अभी ड्रॉ कर लो।
सो यहाँ पे 9 PL/40 मिला, ई पॉइंट पे भी मिला 9 PL/40, और यहाँ पे बी पॉइंट पे तो ऑब्वियसली 0 होगा, दैट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसके बीच में जो डायग्राम होगा दैट विल बी ए पैराबोला। सो पैराबोला को कोई दूसरा कलर से ड्रॉ करते हैं। यस, हियर सी पॉइंट पे कितना मिला हम लोगों को, बेंडिंग मोमेंट क्या मिला, 9 PL/80, 19 PL/80, 19 PL/80। सो ये जो ब्लू वाला लाइंस है दैट वन इज द स्ट्रेट लाइंस, और बीच में जो पैराबोला है दिस वन इज पैराबोला, और ये जो ब्लू लाइंस है दैट इज स्ट्रेट लाइंस। ओके, सो पॉजिटिव, दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए। Okay, so now we will solve a simply supported beam problem with uniformly distributed load and a moment, concentrated moment on it, acting on it. So here we have a beam, simply supported beam AB, in which a uniformly distributed load of 1000 Newton per meter is acting over a length of 5 meter, and a concentrated moment of 1500 Newton meter counterclockwise is acting at a point D. So let's draw the shear force and bending moment for this beam. So stepwise we will proceed. So step 1, reaction calculation. Okay, so reaction calculation के लिए we have our equation of statics, summation of Fy is equals to 0. x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो उस इक्वेशन को हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे एक रिएक्शन मिलेगा RA, बी पॉइंट पे एक रिएक्शन मिलेगा RB जो एक्टिंग अपवर्ड, सो RA प्लस RB माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन सा काम कर रहा है, 1000 Newton per meter, एक्ट कर रहा है 5 मीटर तक, सो टोटल लोड विल बी 1000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। सो एक इक्वेशन मिला हमें, RA plus RB is equals to 5000। Now take another equation, summation of MA clockwise positive is equals to 0। So A पॉइंट पे अगर हम लोग मोमेंट लेंगे, सो आरबी के कारण पहला एक मोमेंट आएगा जो कि आरबी देखो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है। जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, क्या बोला था, उस पॉइंट पे इमेजिनरी अपना थंब रख देना, फिर देखना कि इस बीम को जो भी रिएक्शन और जो भी फोर्सेस के लिए तुम लोग मोमेंट निकाल रहे हो वो कौन सा डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऑब्वियसली एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। सो माइनस आर बी इंटू टोटल लेंथ कितना है 10 मीटर, सो 10 माइनस 1500 काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस ए जो देखो 10,000 Newton per meter जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ए कौन सा डायरेक्शन में इसको घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव, देखो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो लोड है ऑब्वियसली एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो 1000 × 5 दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ टोटल लोड इनटू हमें डिस्टेंस चाहिए, सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर पे एक्ट कर रहा है, सो 5/2 is equals to 0। Now solve this equation and you will have the value of RB। So RB का वैल्यू कितना होगा, RB will be, so इस जगह को कैलकुलेट करो 1500 और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 12,500। सो 12,500 माइनस 1500 सॉरी
1250 minus 1500 divided by 10, because if you calculate it, that will be 15,000 न्यूटन मीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो यस, नाउ दैट इज ओके। सो यू विल हैव minus 250 न्यूटन एज द वैल्यू ऑफ आरबी। सो आरबी का वैल्यू निगेटिव है, ऑब्वियसली एक मोमेंट एक्ट हो रहा है, सो एक रिएक्शन को पॉजिटिव और एक रिएक्शन को नेगेटिव होना ही होगा टू बी इन इक्विलिब्रियम। और इक्वेशन से भी हम लोग देखा कि 250 आ रहा है, नेगेटिव 250। तो आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आर ए का वैल्यू निकाल लो। सो आर ए का वैल्यू हो जाएगा 5000 प्लस 250, that comes as 5250 न्यूटन। सो आर ए का वैल्यू मिला पॉजिटिव 5250 न्यूटन, और आर बी का जो वैल्यू मिला दैट इज नेगेटिव -250 न्यूटन। ओके, सो दो रिएक्शन हमें मिल गया कि आर ए अपवर्ड एक्ट करेगा और आर बी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऑब्वियसली। सो यहाँ से देखो आर बी का वैल्यू हमें 5250 मिला। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, और उसके बाद हम लोग शेयर फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 15,000 दैट मीन्स 15 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ था। सो आई रॉन्गली राइट 1500। सो इस जगह को क्लियर करो नाउ। शेयर फोर्स कैलकुलेशन स्टेप 2। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ओके। तो शेयर फोर्स निकालो। पहले हम लोग एसी स्पैन पे शेयर फोर्स निकालेंगे, उसके बाद सीडी और डीबी तीनों जगह पे देखेंगे। अगर सेक्शन लेना चाहते हो तो सेक्शन के हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो। चलो हम लोग पहले एक सेक्शन लेके देखते हैं। सो कंसिडर ए सेक्शन एक्स एक्स at a distance from A. Okay, consider a section XX at a distance X from A. Now इस सेक्शन पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो पहले यहाँ पे लिखो शेयर फोर्स ऑन AC। सो हम लोग सेक्शन AC के अंदर लेंगे और AC के अंदर ही हम लोग सेक्शन लिए। सो शेयर फोर्स एट X, तो यहाँ पे लिखना कि कंसिडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम A। सो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो इस सेक्शन पे X डिस्टेंस पे हम लोगों का कितना शेयर फोर्स मिलेगा, एक मिलेगा पॉजिटिव RA रिएक्शन के कारण, और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कितना, जो लोड इंटेंसिटी है W इंटू एक्स। सो यहाँ पे W का वैल्यू कितना है 1000 न्यूटन पर मीटर। सो RA का वैल्यू है 5250 माइनस 1000x। सो इस इक्वेशन का नाम दे दो A। सो एट x इक्वल्स टू 0, मतलब A पॉइंट पे, तो shear force at A should be equals to 5250 न्यूटन, that means equals to RA। RA का ही वैल्यू हुआ था। नाउ एट x is equals to C पॉइंट पे देखेंगे, तो A टू C जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था 5 मीटर। सो उस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 5 एट इक्वल्स टू 5 मीटर, that means shear force at C will be equals to 5250 minus 1000 into 5, that will gives you
positive 250 न्यूटन। ओके, नाउ ऑन स्पैन सी डी देखो, सी डी या फिर डी बी, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है। दैट मीन्स ये जो 250 न्यूटन लोड है, दैट विल बी शेयर फोर्स है, दैट विल बी कांस्टेंट। सो शेयर फोर्स इन बिटवीन सी एंड बी, शेयर फोर्स इन बिटवीन सी एंड बी between C and B will be constant, is equals to वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव 250 न्यूटन। क्यों कांस्टेंट होगा, एज देयर आर नो लोड्स एक्टिंग। और बी पॉइंट पे जाके क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगा जिसका वैल्यू है तुम्हारा नेगेटिव 250। चलो देखो एक बार शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सो ए पॉइंट पे कितना मिला, ए पॉइंट पे हमें मिला 5250। सो इस ए पॉइंट पे हमें मिला 5250 न्यूटन आर ए का वैल्यू। नाउ सी पॉइंट पे हमें कितना मिला, सी पॉइंट पे मिला पॉजिटिव 250। एंड ए टू सी, ये जो डायग्राम का वेरिएशन होगा वो स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन होगा। ओके, सो हमें ए टू सी शेयर फोर्स मिल चुका है। नाउ सी टू बी, the shear force value will be constant because there is no load acting, so straight line गया। now b point पे देखो हमें एक रिएक्शन मिला, कितना वैल्यू है उसका, नेगेटिव 250। सो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ लेके जाएगा और इसको क्लोज डायग्राम बनाएगा। अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी भी कैलकुलेशन में देखोगे कि क्लोज डायग्राम नहीं बन रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा कैलकुलेशन में गलती है, तो उसको कैलकुलेट करना होगा। सो 250 न्यूटन पॉजिटिव, सो दैट विल बी द शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम हम लोगों को मिल चुका है। नाउ हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। चलो फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को देख लेते हैं। ओके, सो स्टेप 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए अगेन वी कैन कंसीडर द सेक्शन और वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। सो एक एक करके निकाल लेते हैं, सेक्शन लेके ही करते हैं। चलो फिर, सो पहले बेंडिंग मोमेंट ऑन एसी, एसी स्पैन के लिए निकालेंगे। सो एसी स्पैन के लिए अगर निकालेंगे तो इन बिटवीन एसी हम लोगों को कहीं भी एक सेक्शन लेना होगा। तो कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। ओके, सो उस एक्स एक्स सेक्शन पे, तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन लिया इसका लिमिट कितना होगा, 0 to 5 मीटर। सो यहाँ पे लिखो कंसीडर ए सेक्शन सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। उस सेक्शन पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू आर ए के कारण बेंडिंग मोमेंट होगा, सो आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज दैट वाई पॉजिटिव, माइनस ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर का, तो उसके लिए होगा, सो उसके लिए कितना होगा, 1000 into x by 2, because the 1000 Newton per meter is acting over a length of x, इसका नाम दे दो इक्वेशन a। so at x is equals to 0, that means bending moment at a will be, बिठाओ वैल्यू, आर ए का वैल्यू कितना था, और x इक्वल्स टू 0 बिठाएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो जो सपोर्ट पे होगा 0 होगा। ओके, नाउ एट x इज इक्वल्स टू सी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे 5 मीटर पे, सो 5 मीटर पे, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल्स टू आर ए इंटू 5 माइनस 1000 इंटू
5 into 5/2. नाउ सॉल्व इट। आर ए का वैल्यू था 5250, सो 5250 इंटू 5 माइनस, इसको कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, 12500 मिलेगा। सो इसको कैलकुलेट करो, सो मिलेगा हम लोगों को 13750 न्यूटन मीटर। कैलकुलेशंस को एक बार फिर से चेक करना तुम लोग, सही है कि नहीं है। ओके, तो सी पॉइंट पे हमें मिला 13750 न्यूटन मीटर मिल चुका है। अभी डी पॉइंट पे देखना होगा। डी पॉइंट पे ओके, चलो सी डी पे एक स्पैन लेंगे। सी डी पे अगर लेंगे तो हम लोगों को डी पॉइंट मतलब जो मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, कितना वैल्यू था इसका, 15000 न्यूटन मीटर। ये मोमेंट एक्ट करना, डी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। सो इस मोमेंट को एक्ट करने से पहले, और हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो लॉज जाने थे, क्या होता था कि अगर कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट कहीं पे एक्ट कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डिनेट सडनली चेंज होगा। तो हमें जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट निकालना होगा एक बार बेंडिंग मोमेंट, एंड जस्ट आफ्टर एक बार निकालना होगा। तो पहले जस्ट बिफोर एक बार निकाल के हम लोग चेक कर लेते कि कितना होता है। सो से लेट्स से वी कैन कंसीडर ए सेक्शन ऑन CD। चलो CD पे एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। नाउ बेंडिंग मोमेंट और बेटर यू कैन राइट कंसीडर ए सेक्शन, और सेक्शन के हिसाब से ले सकता है। चलो सेक्शन को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। डी पॉइंट, ए पॉइंट था, बी, ए बी था क्या, कुछ और था, ए सी था, सॉरी, ए सी। ए पॉइंट पे आर ए एक्ट कर रहा है, सी, और यहाँ पे सी डी पे हम लोगों ने स्पैन लिया। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन ड्रॉ किया ऑन सी डी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए। नाउ एम एक्स और बेंडिंग मोमेंट एट x कितना हो जाएगा फिर उस पॉइंट के लिए। सो आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और ए एज टू सी जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 5 मीटर। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा x-5 मीटर, तो उतना जरूरत नहीं है। तो एक सेक्शन पे हमें मोमेंट कौन कौन से के लिए मिलेगा, एक है मिलेगा आर ए के लिए, मिलेगा आर ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, माइनस ये जो लोड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये जो लोड एक्ट कर रहा है, कितना लोड है, 1000 Nm/मीटर। इसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। देखो इस सेक्शन पे देखो, इस पॉइंट पे अगर हम लोग मोमेंट लेंगे तो ऑब्वियसली ये जो लोड है एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो 1000 इसका इंटेंसिटी एक्ट कर रहा है 5 मीटर पे, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, और हमें डिस्टेंस चाहिए इसका सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए। तो इसका सेंटर से लेके वहां तक अगर हमें डिस्टेंस चाहिए होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 5/2। ये जो डिस्टेंस है 5/2, राइट। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा हेजी हो गया, इनटू डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस चाहिए, सो हमें पहले ये छोटा सा डिस्टेंस चाहिए होगा। ये जो छोटा सा डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों का, x-5। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसका CG निकालने से इसका सेंटर से लेके x तक डिस्टेंस चाहिए। सो x तक डिस्टेंस कितना मिलेगा, 5/2 प्लस x-5। सो 5/2 प्लस x-5। सो एक हमें इक्वेशन मिल चुका है, नाम दे दो C। ना हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करके कि कहाँ पे कितना हो रहा है। सो बेंडिंग मोमेंट एट से हम लोगों को C है, D पॉइंट पे निकालना होगा। तो D पॉइंट मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2.5। देखो D पॉइंट मतलब कहाँ पे है, D पॉइंट है 5 प्लस 2.5 मतलब 7.5 पे। सो बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली हम लोग D पॉइंट पे निकालते हैं, C पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर C पॉइंट पे भी तुम लोग निकाल के देख सकते हो एट x इक्वल्स टू 5 बिठा के। तो तुम्हें प्रीवियस जो मिला है 13750 न्यूटन मीटर, वो वाला मिल जाएगा।
So bending moment at D, that means x equals to 7.5 पे ले रहे, x का वैल्यू 7.5 पे मीटर पे. सो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट डी शुड बी इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स. सो आर ए का वैल्यू डायरेक्टली पुट करो. आर ए का वैल्यू है 5250 इंटू 7.5. 7.5 क्यों लिया? डी पॉइंट मेरा किधर है? ए से अगर हम लोग इस डिस्टेंस को देखेंगे, एक्स अगर इधर से लिया तो ये टोटल डिस्टेंस डी तक डिस्टेंस 5 प्लस 2.5. सो ये डी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मतलब डी पॉइंट जस्ट बिफोर. यहाँ पे लिख सकता है, ब्रैकेट में लिखो, इट्स बेटर कि जस्ट बिफोर क्या है? यहाँ पे जो मोमेंट अप्लाई हो रहा था, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट. सो कितना मिल रहा है देखो, आर ए इंटू एक्स. तो आर ए का वैल्यू बिठा दिया, -1000 इंटू 5 इंटू 5/2 प्लस 7.5 -5. नाउ इसको सॉल्व करो. सॉल्व करने से 0.75 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वैल्यू विल कम 39375 -2500. So that will gives you 14,375 न्यूटन मीटर. डी पॉइंट पे हमें मिल चुका है. डी पॉइंट मतलब जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट. ओके, डी पॉइंट तक मिल चुका है, यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल चुका है. अभी डी पॉइंट पे एक सडनली 1500 न्यूटन मीटर का काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है. तो क्या हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज? तो डायरेक्टली स्मार्टली अगर हम लोग नहीं भी निकालेंगे, मतलब सेक्शन नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा. लिखो यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट एट डी कहाँ पे? जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट. सो कितना मिलेगा देखो, डी तक मतलब मोमेंट आने से पहले तक हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कितना लगेगा? 14,375. तो इससे माइनस कर देंगे डायरेक्टली, तो उस पॉइंट पे मिल जाएगा, सेक्शन लेने का जरूरत भी नहीं है. सो इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 14,375 माइनस 15,000. दैट विल गिव यू -625 न्यूटन मीटर. और इस सेक्शन के लिए इस जगह पे जो मैंने किया है, इसके लिए तुम लोग अगर सेक्शन लेके करोगे तो क्या करना होगा? यू नीड टू कंसीडर ए सेक्शन इन बिटवीन डी एंड बी. निकालो. और उस सेक्शन के लिए x इक्वल्स टू पहले बिठाओगे यहाँ पे 7.5, तो मिलेगा एट डी जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ, जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डी. और x इक्वल्स टू 10 बिठाएगा तो b पॉइंट पे मिल जाएगा. तो स्मार्टली अगर हम तुम लोग करोगे तो -650 मिलेगा. अगर चाहोगे कि इस सेक्शन को सेक्शन लेके ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और चाहो तो दिखा सकते हैं. चलो एक बार देख लेते हैं सेक्शन लेके. ओके, सो यहाँ पे आर बी एक्ट कर रहा है, देयर इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ए सी. डी पॉइंट पे मोमेंट आ रहा है, एक काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट था, क्लॉकवाइज नहीं था, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट. इसी जो हमने इसको किया है ना, इसको एक सेक्शन लेके करते हैं जैसे तुम लोग हैबिचुएटेड हो. ये डी था, और यहाँ पे इन बिटवीन डी एंड बी हम लोगों ने एक सेक्शन लिया, एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए आर ए होगा. ये जो डिस्टेंस था दैट वाज 5 मीटर. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था दैट इज 2.5 मीटर. ओके, सो से हम लोगों ने एक सेक्शन लिया, चलो सेक्शन लेके करते. सो
मतलब यही 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली कर दिया वही आएगा। अगर सेक्शन लेकर करोगे तो यहाँ पे लिखना होगा लेट कंसिडर ए सेक्शन इन बिटवीन डी एंड बी। डी एंड बी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। अच्छा, कहाँ पे कितना डिस्टेंस पे किधर से तुम लोग सेक्शन ले रहा है उसको अच्छे से याद रखना होगा, नहीं तो जब तुम लिमिट का वैल्यू बिठाएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा। सो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए, उस सेक्शन पे। सो आर ए के लिए मोमेंट आएगा आर ए इंटू एक्स क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, नाउ इस लोड के कारण जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 1000 न्यूटन पर मीटर, इस लोड के कारण भी एक्ट होगा नेगेटिव। पहले लोड का वैल्यू 1000 × 5। ना हमें इस सेंटर से लेके इस सेक्शन तक डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, पहले अंदर वाला छोटा सा डिस्टेंस निकाल लो। ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन यहाँ पे मिलेगा, कोई और कलर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पहले निकाल लो। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, x - 5। ऑब्वियसली 5 मीटर पे आ रहा है, ये तो 5 मीटर पे था तो x - 5। सो x - 5 प्लस 5/2। सेंटर तक जाना है तो 5/2 इस मोमेंट के लिए हो गया। नाउ और एक यहाँ पे एक्ट कर रहा है मोमेंट, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। सो -150000। अभी देखो, ये जो पहला वाला पोर्शन है आर ए इंटू एक्स 1000 × ये जो पोर्शन हम लोगों ने लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हैं कहाँ पे, जब हम लोग सेक्शन लिया था यहाँ पे देखो वही है आर ए इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू अभी बिठाएंगे 7.5। ऑब्वियसली 7.5 पे हम लोगों को अगर डी पॉइंट पे चाहिए जस्ट बिफोर, तो 5 + 2.5 7 पे चाहिए होगा। सो इसका वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 14375 - 1500। सो दैट विल गिव यू -625 Nm। दैट मीन्स सेक्शन लेके भी कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है। तो जो टाइम सेविंग होगा जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस से फॉलो करना होगा। सो हमें सारा पॉइंट्स पे मिल चुका है मोमेंट। ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0 एज दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। सी पॉइंट पे मोमेंट मिला, सी पॉइंट पे कितना मोमेंट मिला, ए सी पॉइंट कहा गया एक सही यहाँ पे, सी पॉइंट पे मिला 13750। ओके, डी पॉइंट पे जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट 14375 मिला। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट -625 मिला। तो चलो अभी, और लास्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे 0 मिला। ऑब्वियसली 0 होगा इस सेक्शन में। इस ये जो मैंने सेक्शन ड्रॉ किया यहाँ पे अगर x = 10 बिठाओगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव ए 0 मोमेंट। तो ये जो सेक्शन लिया इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 < x < 10। ए से लेके एकदम बी तक जो सेक्शन का इक्वेशन यहाँ पे लिखा। तो चलो इसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अभी बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम चाहिए। तो यहाँ पे 0, इस पॉइंट पे कितना हो रहा है, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सॉरी सी पॉइंट पे कितना हो रहा है, सी पॉइंट पे जो मोमेंट हो रहा है उसका वैल्यू है 13750। तो इस पॉइंट पे हमें एक मोमेंट मिला जिसका वैल्यू है 13750 न्यूटन मीटर। डी पॉइंट पे कितना मिला, डी पॉइंट पे आएंगे उसके बाद में, पहले इन दोनों के बीच में ए टू सी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का जो नेचर होता है पैराबोला होता है। अभी क्वेश्चन है कि कौन सा पैराबोला होगा। शेयर फोर्स देखो ए टू सी क्या हो रहा है, शेयर फोर्स का वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो पैराबोला मिलेगा दैट विल बी डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला। सो ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला। यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करके देखो, बहुत ज्यादा स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कम हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम सी टू डी यहाँ पे तो कुछ एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी लोड नहीं है।
सो सी टू डी जस्ट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट हमें कितना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिला था? उसका वैल्यू मिला था 14.7। अच्छा, तो फिर इसका वैल्यू ज्यादा मिला है हमें। कितना मिला था उसका वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट 14,375। तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। सो ए से दिस वन, तो इसका वैल्यू है 14,375 न्यूटन मीटर। और इसके बीच में जो लाइन होगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वहां पे कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है। सो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 13,750 टू 14,375 स्ट्रेट लाइन। नाउ अभी यहाँ पे डी पॉइंट पे हमें पॉजिटिव में मिला। अभी देखो जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ डी, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इतना मोमेंट है 14,375, उसके बाद अचानक से इसके ऊपर एक काउंटर क्लॉकवाइज 1500 का मोमेंट आ गया, तो वो इसको नीचे लेके जाएगा। सो कितना नीचे लेके गया ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड 625 न्यूटन मीटर। सो यहाँ से लेके ए हो जाएगा तुम्हारा फिर से इंक्लाइंड लाइन, that one is the inclined line. Let me draw it again. So that will be your inclined line. अभी देखो ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव। so इस पॉइंट पे देखो ऑब्वियसली मोमेंट का वैल्यू 1500 होगा। सो 14,375 प्लस 625 इज इक्वल्स टू 1500। सो ये जो टोटल ऑर्डिनेट है यहाँ पे मोमेंट जो एक्ट कर रहा है टोटल कंसंट्रेटेड मोमेंट 1500। सो बाय दिस वे स्टेप बाय स्टेप विथ पेशेंस अगर सॉल्व करेगा, सो कोई भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है उसको आसानी से तुम लोग निकाल पाओगे। तो आई होप कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तुम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड दे उसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके।